میں محترم محمود خان اچکزئی صاحب کا سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شکر گزار ہوں اور وقت کی کمی کی وجہ سے براہ راست موضوع پہ آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ایک ہوٹل میں ہونی تھی اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ فاشزم ہے، جمہوریت دشمنی ہے اور عوام سے خوف ہے کہ جس کے نتیجے میں آئین کے تحفظ کے لیے ہونے والی ایک آل پارٹی کانفرنس جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ شریک ہو رہی ہے اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں، اس کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ فسطائیت اور فاشزم ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں اور یہ حکمرانوں کی خوف کی علامت ہے۔ دوسرا جو فیصلہ آیا ہے کینگرو کورٹس کا جس پہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے، میں اس فیصلے کی بھی مذمت کرتا ہوں اور یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ووٹ کی توہین ہے، عوام کے حق حکمرانی کی توہین ہے، جمہوریت کی توہین ہے اور عسکریت، ڈکٹیٹرشپ اور آمیریت کی فتح ہے اور ہر جمہوریت پسند کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اپنا درد دو تین جملوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئین اس وقت نہیں ہے، عدلیہ کا آئین ختم ہو چکا ہے اور وہ دلیہ رہ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت آمیریت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے، پارلیمنٹ غلام ہے، ربر سٹیمپ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اسکرپٹڈ کاروائی کا مرکز ہے اور ول آف دا پیپل کو کسی بھی صورت میں ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ جو جیت چکے ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جو ہار چکے ہیں اسے پارلیمنٹ کے اندر لا کر بھر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ میڈیا کا گلا گونٹ دیا گیا ہے، بدترین انداز سے میڈیا کا گلا گونٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل ورکرز کو اپنا کردار متعین کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن نہیں ہے، آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں باجوڑ کے اندر سر بکف کے نام سے 22واں ملٹری آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ 2003 میں پہلا ملٹری آپریشن تھا، آپریشن شیر دل، آپریشن دی لائن ہارٹ، جو امریکی افغانستان میں چلا رہے تھے، اس کا اردو نام آپریشن شیر دل ڈیورن لائن کے اس طرف پاکستانی فوج چلا رہی اور 22 سالوں میں 22 ملٹری آپریشن، لیکن خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے۔ اور ملٹری آپریشن کون سے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب آپ دیکھ لیں، ایسے نام رکھے ہیں ملٹری آپریشن کے جس سے پختونوں کی قومی تاریخ اور پختونوں کی اجتماعی نفسیات کی توہین ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں چند کے نام بتاتا ہوں آپ کو۔ آپریشن شیر دل، آپریشن راہ نجات، آپریشن راہ راست، آپریشن المیزان، آپریشن رد الفساد، آپریشن زلزلہ، آپریشن خوخ بدشم۔ خوخ بدشم کا مطلب اردو میں ہے میں تمہیں ٹھیک کر لوں گا، میں تمہیں سیدھا کر لوں گا۔ آپریشن درغلم، آپریشن درغلم کا اردو میں مطلب ہے میں تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آپریشن بیا درغلم، آپریشن بلیک تھنڈر، آپریشن کوہ سفید، آپریشن ضرب غضب اور اب آپریشن ضرب کف۔ ان آپریشن سے پختونوں کے گھر، مدرسے، حجرے تباہ ہو گئے، باغ اور کھیت تباہ ہو گئے، ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جرنیلوں نے جزیرے خرید لیے، جرنیلوں نے پاپا جونز کمپنیاں بنائی۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جو ملٹری آپریشنز کے نام سے 22 سال سے خیبر پختونخوا میں یہ جاری ہے۔ ابھی کل باجوڑ کے اندر خیبر پختونخوا کے باجوڑ کے خواتین اپنے روایتی برقعوں میں بچوں کو گود میں لیے، ہاتھوں میں سامان کی گٹھیاں لیے، اپنے ہی وطن میں مہاجر
TDPs क्या होते हैं? टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, इनलैंड रिफ्यूजीज, वतनी महाजिर, अपने ही मुल्क में महाजिर, ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, पुख्तून एरिया में मिलेंगे। ये तौहीन है। और फिर आप देखें बलोचों को, आज 16वां दिन है, बलोच बच्चे बच्चियां इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठी हुए, मैं रोज जाता हूं, आज भी जा रहा हूं उनके साथ, और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग बलोच बच्चों बच्चियों के साथ जो इस्लामाबाद आए हैं, इज़हारी यकजहती के लिए जाएं और बार बार जाएं। उनको प्रेस क्लब के सामने बैठने की इजाजत नहीं है। पख्तून खवातीन घरों से दरबदर हैं और बलोच खवातीन इस्लामाबाद के सड़कों पर बैठने के लिए वो जगह नहीं पा रही। ये खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो फेडरेटिंग यूनिट के साथ वफाक का और वफाक के जो असली कब्जागीर हैं उनका वो रवैया है। इस वक्त जो वफाक और सूबों की मामलात को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, आर्टिकल 153, आर्टिकल 158, आर्टिकल 160, आर्टिकल 161 और आर्टिकल 172, ये अमलन वजूद नहीं रखते। वफाक कब्जा कर चुका है। माइंस एंड मिनरल की बात आई, टिम्बर एंड मिनरल, ये तो टॉप हदफ है, टिम्बर एंड मिनरल, और उसके साथ गैस, उसके साथ पेट्रोलियम, उसके साथ संगमरमर, उसके साथ तमाम वो कीमती दौलत जो सूबों में है। और दस्तूर पाकिस्तान की सबस किताब में सूबों को उसके ऊपर इख्तियार दिया है। रावलपिंडी के दस्तूर न मानने वाला टोला वो इख्तियार तस्लीम नहीं कर रहा। आप देख लें, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ चीनी का 205 रुपए किलो चीनी, जो 140 रुपए कम से मिलनी चाहिए थी फे किलो, आवाम को लूट रहे हैं। 7 लाख टन चीनी इंपोर्ट, 7 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट और 126 टन चीनी, 126 टन चीनी। 60 टन आपने एक्सपोर्ट कर दी, 7 लाख टन आपने इंपोर्ट कर ली और 126 लाख टन आपने जखीरा किया हुआ है। जखीरा अंदोजों की हुकूमत है जो इस कौम को, इस आवाम को लूट रही है। इसलिए कि अदालत नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए कि आईन नहीं है, इसलिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। और ये जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए, मैं समेट रहा हूं, वहां पे इमरान खान और पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने बिचारी आफिया को कुर्बानी का बकरा बनाया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसके ऊपर स्टेट पॉलिसी है गुज़िश्ता 23 साल की, आपने उसकी नफी की। आफिया का केस इंसाफ का कत्ल है, जिस तरह इमरान और पीटीआई का केस जो आ जाए ये इंसाफ का कत्ल है। फिर आप देख लें, ट्रंप को आपने मुल्क बेच दिया है, यह मुल्क उन्होंने फिरोख्त कर दिया है। ट्रंप को आप, जिसको दहशतगर्दी का आलमी अवार्ड मिलना चाहिए, ईरान के ऊपर हमला, शाम के ऊपर हमला, यमन के ऊपर हमला, गजा के अंदर जेनोसाइड, बच्चों का होलोकॉस्ट, आप उसको रिकमेंड करते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। आप जनरल माइकल कोरेला, वो अमेरिकी जर्नल है जो सबसे ज्यादा इसराइल नवाज है, वो अमेरिकी जर्नल है जो सबसे ज्यादा इसराइल का दोस्त है, जिसने गजा की जेनोसाइड और ईरान पे हमले की श्योरिटी और गारंटी ट्रंप को दी थी। आप उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा निशानी इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान के ईवान सदर में दे रहे हैं। यह तौहीन है कौम की, यह कौमी निशानात की तौहीन है, यह पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है। यह ईवान सदर जो वफाक की अलामत है, यह उसकी तौहीन है। और अब आज का जो ट्रंप का ट्वीट है, यह बात याद रखें, आज ट्रंप का ट्वीट है कि हमने एक गैर मामूली मुआहिदा कर लिया है, गैर मामूली मुआहिदा, और पाकिस्तान के तेल आपने नोबेल पीस प्राइज दी, आपने निशान इम्तियाज दिया, अब पाकिस्तान के मिनरल और तेल आपने ट्रंप के हवाले कर दिए हैं। ये जो तारीफें हो रही है बिलावजह नहीं है, ये बिलावजह नहीं है। ये जो लंच है ये फ्री में लंच नहीं होता, इसकी कीमत पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आवाम जो है उनको अदा करना होगा। इसलिए महमूद खान चकजाई साहब, आवाम
बेयार व मददगार हैं। आईन नहीं है, अदलिया नहीं है, मीडिया नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है। कौमें फिरोख्तन, बच्चे अरजात फिरोख्तन, मिनरल्स फिरोख्त हो रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी एजाजात फिरोख्त हो रहे हैं, पाकिस्तान के तेल फिरोख्त हो रहे हैं। मुश्तरका मुत्तफिका लाहे अमल दे। माजी की बातें छोड़ें, अपनी गलतियों से सबक सीखें। जो लम्हे मौजूद है इस चैलेंज का इदराक करें, कुछ भी नहीं बचेगा। मुश्तरका मुत्तफिका लाहे अमल, जिसका एक नकाती एजेंडा हो, आईन की बहाली। आईन बहाल होगा तो पार्लियामेंट, ट्रू पार्लियामेंट होगी, फ्री मीडिया होगी, फिर फ्री जुडिशरी होगी, फिर एक फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन होगा। आईन बहाल होगा तो अकाउंटेबल होगी हुकूमत। आईन बहाल होगा तो आप माफिया का मुहासिबा और एहतिसाब कर सकते हैं। इसलिए आईन की बहाली आईन नहीं है। आईन की और उसके लिए सड़कों पर आए, सड़कों पर आए। मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से, आप अंदाजा कर लें, मेरी एहलिया, मेरे बच्चे फलस्तीन के लिए हैं। 8 मुकदमात, जिसमें से एक में मैं बरी हुआ हूं अभी दहशतगर्दी की अदालत से। उस एफआईआर में क्या था? एंटी स्टेट। फलस्तीन के लिए इस्लामाबाद में आवाज उठाना एंटी स्टेट है। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, ये वो एक एफआईआर, 7 एफआईआर और है जो मेरे ऊपर उन्हें, इसलिए कि मैं यहां पर गजा की आवाज उठाता हूं। तो आप निकलें, फैसला आप सड़कों पर होगा, फैसला आप चौकों में होगा, फैसला आप चौराहों में होगा। पार्लियामेंट डमी है, पार्लियामेंट गुलाम है, पार्लियामेंट अंगूठा छाप है। इस पार्लियामेंट को छोड़ो, चौक और चौराहों, सड़कों और शाहराहों पर आओ और कौम का मुकदमा लो। कौम आपका इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया।